student. Today I'm teaching you social science for class 8th, and this is your chapter India after independence, new challenges ahead. So in this chapter, this is the second last topic. The following topics I covered in this chapter in my previous video, such as the immediate challenges before newly independent India, then India freed from French and Portuguese control, then farming of the constitutions, reorganization of states and administrative challenges, the evaluation of India's foreign policy, then success and failures of the Indian democracy in the last 50 years. Okay, so after all these points, now this is the second last topic of this chapter, that is the socio-economic challenges. So socio-economic challenges means after independent, in front of the Indian leaders, the problem arose, that was how to control the following problems, such as overpopulation, illiteracy, casteism and poverty, and many more other problems. But these are the major problems. So first is overpopulation. So as we know that before independence, the peoples were illiterate. They don't know how to do the planning, how to do the family planning, or they courageous for the early marriages. So by all these things, by all these points, we get very much population in our country. So since independence, overpopulation has been the root cause of extreme poverty and unemployment. तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पर, बिफोर इंडिपेंडेंस, जो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. The Indian government is still trying its best to meet this challenge by spreading awareness about the family planning measures and education and by discouraging early marriages. तो कोशिश की गई कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है, और जो काफ़ी यंग एज में बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, बैन किया जाए. नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज illiteracy. So as India became independent, it was realized that in an independent democratic state, citizens must be literate so that they can assert their rights and exercise their duties. It was understood by the leaders of independent India that without literacy, our nation can never develop or become truly democratic. Okay, तो लिटरेसी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये रियलाइज़ किया गया कि अगर हमारा कंट्री आज़ाद है और डेमोक्रेटिक हमारा स्टेट है, बट उसमें अगर हमारे सिटीज़न लिटरेट नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम सामने और बढ़ सकती है, जिसमें लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो इट वॉज अंडरस्टूड बाय द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट विदाउट लिटरेसी आवर नेशन कैन नेवर डेवलप. तो जो इंडियन लीडर्स थे उनको पता था कि until and unless we not give education, we not make literate to our citizens, it is not the become truly democratic. तो तब तक हम अपने कंट्री को truly democratic नहीं बना सकते, क्योंकि पीपल्स को उनके अधिकारों के, उनके ड्यूटी के बारे में पता ही नहीं होगा. In order to eradicate literacy, our constitution suggested free and compulsory education for all children up to age of 14 years. तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सजेस्ट किया कि जो एजुकेशन दी जाए बच्चों को, वो 14 इयर्स के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज casteism. The leaders of independent India realized that
casteism is a major threat to our national unity. Okay, तो जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंट कंट्री के, उन्होंने ये रियलाइज किया कि कास्टिज्म का जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, वो हमारी कंट्री को यूनाइट नहीं होने देगा, यूनिटी नहीं होने देगा. तो इसलिए कोशिश किया गया कि कास्टिज्म को ख़त्म किया जाए. So special case was taken to abolish the practice of untouchability, which is perhaps the worst features of the caste system. तो जिसमें अनटचेबिलिटी मेन था, ठीक है. हिंदू टेम्पल्स विच वर प्रीवियसली ओपन ओनली टू द हायर कास्ट वर नाउ थ्रोन ओपन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट. अब पहले जो हिंदू टेम्पल्स थे वो सिर्फ अपर कास्ट के पीपल्स के लिए खुलते थे, बट नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंट it be noticed has given, or it is very much clear to the very much point has given to peoples that the temples would also be open for all caste people. So in order to promote social equality, scheduled caste and scheduled tribes were given reservation in legislature and in government jobs. और इसके साथ साथ along with this सोशल इक्वालिटी के लिए जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्रिब्स हैं, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया लेजिस्लेचर पार्टी के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेन मेजर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस वाज पॉवर्टी. सो सिंस इंडिपेंडेंट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप eradication of poverty as one of its most challenging tasks. तो पॉवर्टी भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था इन फ्रंट ऑफ द इंडियन लीडर्स, हाउ टू इरेडिकेट द पॉवर्टी. ओके. नाउ नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंट ब्रिटिशर्स हैज लेफ्ट आवर कंट्री. उसने हमारी कंट्री में जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था. वैसे ही स्टार्टिंग से कोई सिस्टम नहीं था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब हमारी कंट्री को छोड़ा तो सिस्टम को बनाना बहुत ज़रूरी था. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू लिफ्ट इंडिया आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च द 5-year प्लान. तो इंडिया को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए पॉवर्टी को ख़त्म किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर को मेन, क्योंकि मोर ओवर पीपल टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर पीपल हमारे पास ज़्यादा थे. तो ज़्यादा जो सेक्टर है उस सेक्टर को ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश किया गया. उसके बाद इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया. ठीक है. एंड गवर्नमेंट लॉन्च द 5-year प्लान, और इंडियन गवर्नमेंट ने 5-year प्लान को लॉन्च किया. So as a result of the 5-year plan, dams were built across major rivers. जो बड़ी बड़ी रिवर्स थी वहाँ पर डैम्स बनाए गए. These dams called multi-purpose project. ऐसे डैम्स को बनाने को multi-purpose project कहा गया. Provide irrigation, generate hydroelectricity power. ठीक है. इरीगेशन प्रोवाइड किया गया फील्ड्स में. इरीगेशन के जो सिस्टम था उसको रिजॉल्व किया गया, सुधारा गया. ठीक है. जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई. एंड प्रिवेंट फ्लड्स, जिसकी हेल्प से फ्लड भी प्रिवेंट हुए, कंट्रोल हुए. ठीक है. एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डैम्स एंड भाखरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड नागर अर्जुन सागर प्रोजेक्ट. तो सच टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट हैज़ innovate or decide to do. So with the launch of the first 5-year plan, India began to expand her industrial base. अब ये जो 5-year plan थे, इनकी हेल्प से इंडिया ने इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया, बढ़ावा दिया इंडस्ट्री सेक्टर्स को. So the government has given stress on the scientific and industrial research, especially on the development of heavy industries such as steel, engineering, equipment, electronics, etc. और गवर्नमेंट ने स्ट्रेस किया साइंटिफिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिसर्च करने के लिए. डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज थी लाइक स्टील, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी इंडस्ट्रीज के सर्च करने के लिए भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. सो वन ऑफ आवर फर्स्ट स्टील प्लांट वॉज भिलाई.
One of our first steel plants was Bhilai Steel Plant, set up in 1959 with the assistance of Soviet Union. तो जो हमारी कंट्री में फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप हुआ वो भिलाई में हुआ, ठीक है। ये स्टील प्लांट था, 1959 में इसको सेट किया गया था, ठीक है। नाउ thus with a new hope and confidence, Indian embarked on a challenging journey to lift the nation out of poverty, ignorance and backwardness, and to build a circular democratic India based on equality and justice. So, एक नई होप के साथ, एक नए कॉन्फिडेंट के साथ इंडिया ने अपने को एक चैलेंजिंग जर्नी बना के रखी, ठीक है। क्योंकि एक चैलेंजिंग जर्नी इसलिए थी क्योंकि एज ब्रिटिशर्स हैज़ लेफ्ट द कंट्री, अनएम्प्लॉयड कंडीशन, पॉवर्टी, कास्टिज्म, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन पीपल्स के सामने या इंडियन लीडर्स के सामने थी आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो फॉर to remove all these problems, Indian leaders has done lot of efforts to lift the nation out of the poverty, ignorance, backwardness. तो ये कुछ ऐसे problems थी जिनको इंडियन लीडर्स ने strongly step लिया and to build a circular democratic India, और फिर हमारी कंट्री को एक circular democratic India में कन्वर्ट किया जिसमें इक्वालिटी और जस्टिस थी, ठीक है. Now some important terms regarding this chapter. One is refugee. Refugee कौन होता है? A person who has been forced to leave their country or home because of any reason such as war, strife, etc. कोई भी ऐसा person जो forcefully किसी अपनी country को, home country को उसको छोड़ना पड़े, दूसरी country में जाना पड़े because of any of the reason behind this. Then next, disarmament. So against armed race. ओके, डिसआर्मेंट मीन्स हम जो आर्म की जो रेस है कि किसके पास कितना बारूद है, कितना गोली है, वो सब लाइन रे में या हम कह सकते हैं रेस में शामिल ना होना डिसआर्मेंट्स कहलाता है. नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉट अटैच टू एनी पावर, किसी भी पावर के साथ अटैच नहीं होना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहलाता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स पीपल इलेक्ट मेंबर्स टू पार्लियामेंट, ऐसी पार्लियामेंट जिसमें जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाए. देन प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय इंडियन किंग्स और प्रिंसेस, ठीक है. ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे इंडिया के जो किंग हैं और जो प्रिंसेस हैं उनके द्वारा रूल हो रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स को हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं. पीसफुल को एग्जिस्टेंस मीन्स लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, peaceful coexistence. Okay, then rule of law, all administrative decisions taken on the basis of law, ठीक है. जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो सारा किसके बेसिस पे लिया जाता है? लॉ के बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है. नाउ एट द सेम टाइम एल्सवेयर, अब जब हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारी प्रॉब्लम हमने फेस करी, तो सेम एज व्हाट हैपेंड इन अदर कंट्रीज. इन 1949 चाइना बिकम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग. द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द न्यू गवर्नमेंट वाज लैंड रिफॉर्म्स. तो सेम 1949 में चाइना भी अपने आप में पीपल रिपब्लिक बना, ठीक है. इसमें जो लीडर्स थे उस टाइम पे माओ जेडोंग थे, ठीक है. इन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई और इस गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किया, मतलब लैंड में सुधार किया. सो लैंड वाज टेकन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड गिवन टू द लैंडलेस फार्मर्स हु वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स. अब यहाँ पे इन्होंने कैसे लैंड रिफॉर्म किया कि जो लैंडलॉर्ड ने जो ज़मीनें ले रखी थी और फार्मर्स को लैंडलेस करके रखा था, उन लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनों को लेकर एक्चुअल जो ज़मीन के हकदार थे उनको हैंड ओवर कर दी गई. द करप्ट लैंडलॉर्डर्स वर पनिश्ड एंड मेनी ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड, ठीक है. तो बहुत से ऐसे लैंडलॉर्ड्स को पनिश भी किया गया, ठीक है, और उनसे ज़मीनें छीन ली गई.
Mao tried to reform society by banning forced marriages and declaring that all marriages should be on the basis of free consent of both man and women. और उन्होंने मैरिज जो प्रथा थी, ठीक है, उसको उसमें भी सुधार किया. By 1953, banks and the key industries were brought under government control. और 1953 में बैंक और जो अदर जो इंडस्ट्रीज सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए. फ्रॉम 1953 चाइना स्टार्टेड इट्स 5-year प्लान. और 1953 से चाइना ने अपना 5-year प्लान स्टार्ट किया. ठीक है. नाउ योर हिस्ट्री पोर्शन इज टोटली कंप्लीट. In next video, I'll explain you the geography chapter about disaster. So thank you and have a nice day.